شریف تمام ریسرچ اسکالرس فیمل شاگردوں کے ساتھی، آج اس الوداعی تقریب کے موقع پر آپ تمام نے جس طرح کا اہتمام کیا ہے اور جس طرح سے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا کر اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور بالخصوص ایم فل اور ایم ایس دو اور پی ایچ ڈی کے طالب علم ریسرچ اسکالرس کے لیے جن کے لیے آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، واقعی وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے مشہور ہیں، اور میں ان تمام کی جانب سے اور اپنی دلی جذبات کے اعتبار سے میں آپ کا اس پروگرام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے پروگرام کو منعقد کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس شعبے سے جڑے رہنے کے بعد بہت سارے تجربات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو یہاں کہتے بغیر میں صرف آپ سب کی محبت، آپ سب کے خلوص، جس طرح سے جو بھی ہمیں مل سکا یا ہم لوگوں کو ملا، میں اس تمام کی قدر کرتا ہوں، اس کی پاسداری اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ خیال رکھوں گا کہ جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں، یا ہم سب جہاں بھی رہیں گے، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ ہم اس طرح سے اپنے چھوٹوں کا پیار پاتے رہیں گے، اور یہ تبھی مل سکے گا جب ہم انہیں اس طرح کا پیار دیں گے، جب ہم ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں گے، اچھے سے رہیں گے، اور جو ممکن ہو سکا ہم لوگوں نے جتنا کچھ ہم لوگوں سے ہو سکا ہم نے کیا۔ انشاءاللہ اب اس حال کو دیکھ کر اس طرح سے آپ تمام محسوس کر سکتے ہیں، اور میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ اب مجھے کسی چیز کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والے لوگ کیسے اس پروگرام کو چلائیں گے، کیسے اس پروگرام کو کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام پورا جو دیکھ رہے ہیں اس میں کہ بالخصوص نصیر صاحب، عبداللہ صاحب، صادق اقبال صاحب فرسٹ ایئر کی رضوان جو نظامت کر رہے ہیں پورے پروگرام کو، جس طرح سے آرگنائز کیا تھا، اس سے پہلے پروگرام جو بھی ہو رہا تھا ایم ایس دو یا پھر ہم ریسرچ اسکالرس اس کو مل کر منعقد کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کسی طرح سے یہ کہتے کہ فرق محسوس کر رہے ہیں، کسی طرح سے کوئی کمی محسوس نہیں کی جا رہی ہے، اور اس سے بہتر ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کے لیے سب کو مبارکباد دیتا ہوں، میں خوشی ظاہر کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ اس سے بہتر کریں گے، ہم لوگ رہیں نہ رہیں، شعبے میں لوگ رہیں، شعبہ چلنا چاہیے، اور شعبے کے لوگ اس طرح سے جو بھی آئیں وہ دیکھ کر اسی رنگ میں رنگ جائیں، اسی انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، آپ لوگوں کی کوششیں اس میں جاری رہنے کی، ہم لوگوں کی جو کوششیں تھی اس کو آپ نے آگے بڑھایا، اس کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ بھی اسی طرح سے آپ لوگ آنے والوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، جس طرح سے ہم لوگوں سے جو ہو سکا کیا، آپ لوگوں سے بھی جتنا ہو سکے گا اس سے بہتر کریں گے۔ امید ہے کہ آنے والا اس سے بھی بہتر کرے گا، اور شعبہ دن بدن ترقی کرے گا۔ یہ سب ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمارے اساتذہ اور ہمارے یونیورسٹی کے تمام لوگ ہمارے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں ساتھ مل رہا ہے اور ملتا رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی ملتا رہے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ میں وہ جذبہ موجود ہے کہ جو ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈھالنے کا، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ آئے تھے تو شاید اس طرح کے نہیں تھے کہ ہم اپنی تخلیقات کو کسی کے سامنے پیش کر پاتے، ہم اپنے خیالات کا اظہار کسی کے سامنے پیش کر پاتے، شاید ایسا نہیں تھا، لیکن ان کی کوششوں سے ہم لوگ اس قابل ہو سکے ہیں، ٹوٹی زبان میں جو چند کلمات کہیں بھی ادا کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم چند لفظ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اپنی تخلیقات سے یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم بھی کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ کہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کرتی رہیں گی، اور ہمارا شعبہ اسی طرح سے ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ آپ تمام کو ترقی عطا فرمائے۔
कामरानी और कामयाबी अता फरमाए। जो लोग शोबे में फिर से वापस आने वाले हैं मेरी मुराद इन्हें फाइनल ईयर के जिन्हें एमफिल में आना है और यकीनन आना है वो इस लायक हैं कि वो ज़रूर अपनी कामयाबी का मौका बनाएंगे। और जो लोग इस शोबे से जा रहे हैं मसलन बद सुल्ताना साहिबा यहाँ मौजूद नहीं हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद नहीं हैं और खाकसार और बिलखुसूस एमए के जरार साहब, आफ्ताब साहब जिनका रुझान दूसरी तरफ है, लेकिन वो लोग भी इस शोबे से जब जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ, इस खुशी के साथ वो लोग जाएंगे तो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उसका मुस्तक़बिल अंधेरे में है। इंशाअल्लाह हम सबका मुस्तक़बिल उजाले में है और हम सब लोग रोशनी की तरफ जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे और एक मिसाज छोड़ेंगे। जहाँ भी रहेंगे वही एक शेर रोशनी बंद का कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा। वो शोबे की रोशनी होगी, वो आप लोगों की तहजीब की रोशनी होगी, हमारे असर की और अपने दोस्तों के साथ रहें और उस तहजीब और उस कल्चर, उस माहौल का असर होगा जो हम लोगों के सामने भी कर सकेंगे और उस पर फख्र महसूस कर सकेंगे। इन्हीं कलमात के साथ जिनमें कई तरह के जज्बात कभी खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे नौ साथी जिन्होंने इस तरह का एहतराम किया, जिन्हें हमें इनकी मुस्बत इतना भरोस दिया और एक तरफ ये इस शोबे से हमारे ऐसे साथी जो दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं, जाने फिर मुलाकात कभी हो ना हो, खुदा करे जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। मैं समझता हूँ कि हमेशा आपका काम हमारे साथ रहा है। जब भी आप क्लास में आते हैं या क्लास के बाहर मिलते हैं हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और हमारे फ्यूचर के बेहतर मुस्तक़बिल की हमेशा तमन्ना करते हैं। मैं आप तो जा रहे हैं लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें ना फरामोश करें बल्कि हमेशा शोबे को याद रखें और हमें याद रखें। इंशाअल्लाह हम सब आप किताब को याद रखेंगे। मैं अब जो है मैं नसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद जो मोमेंटोज की कार्रवाई है उसको पूरी करें। मैं कहना चाहूँगा आफ्ताब अहमद को, आफ्ताब अहमद एमए सालियात, आफ्ताब अहमद एमए सालियात वो आए और सर यहाँ से आप आके सर आप सोचे कबूल करें। एमए के दूसरे साल में रफिया बेगम तशरीफ लाएँ, रफिया बेगम तशरीफ लाएँ और सर के आगे से को कबूल करें। एमफिल की स्कॉलर फाज़िला सुल्ताना नहीं आई। शेख रेशमा अगर मौजूद हो, शेख रेशमा आप तशरीफ लाएँ और सर के हाथ से अपने तोहफे को कबूल करें। मैं मुस्लिम के साथ बकिया परिवार को अपने हाथों से तोहफे को ऐलान करें। मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद फिरोज़ खान को, मोहम्मद फिरोज़ खान वो आए और सर से एमए के दूसरे तालिब इल्म सैफुल इस्लाम
बाद नगमा तबस्सुम आप तशरीफ लाएं और सर के हाथ से तोहफे को कबूल करें। मोहम्मद इमरान से बात करता हूँ वो आए और सर के हाथ से तोहफे को कबूल करें। अभी एक पसंद इफ्तार है नहीं उनका जो इनको बाकी जो बचे भी हैं और दूसरे तलबा हैं उनको आप अपने हाथों से याद करें। मैं एमए के तालिब मोहम्मद एजाज एमफिल के स्कॉलर अर्शुद्दीन रहमान मैं हमारे मोस्ट सिंगर और एडीएफ के सर मोहम्मद जुबैर गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ और अलविदाई तोहफे को कबूल करें सबके हाथों से। क्या कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आ नहीं सके हैं उनके तोहफे हमारे पास होंगे हमारे साथ में वैसा वो कहेंगे हो सकता है कि एडीएफ के जरिए उनको देखा जाए। और मैं सर से बात करूँगा जैसा वो कहेंगे कि एलजी के गुलाम मुस्तफ़ा और बड़ा सुल्ताना साहब उनको मैं दावत दिया तो शायद आ नहीं सके। इसके अलावा कुछ शर्ट के कुछ लोग रह गए हैं तो हमारे पास महफूज होंगे तो बात में देखा जाएगा। बहुत कुछ प्रोग्राम में दोबारा सादगी बख्शने के लिए मैं गुजारिश करूँगा दुआ और अपने दिल से सामने को मजबूत करें। नहीं मालूम हम लोग कल कहाँ नहीं है तो इसी पे मैं कुछ पेश करना चाहती हूँ
بہت شکریہ رشدہ صاحب صاحبہ، آپ اپنے کلام سے ہم سامعین کے دلوں کو اور روحوں کو مستفید کر رہی تھی۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شعبے کے صدر جناب ڈاکٹر ابوالکلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے اظہار کریں۔ ڈاکٹر ابوالکلام صاحب۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ چاہیں تو تمام کی طرف سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ مطالعہ کر میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو ہے یقین بات ہے تشریف لائیں، بڑے مختصر ہی مدت کے لیے۔ شکریہ۔ میں ڈاکٹر مصباح انصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کے ساتھ۔ ڈاکٹر مصباح انصر۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری نمائندگی اور صدر شبہ قائد سے یہاں کہیں گے، بس کر جب آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو اپنے دن یاد آئے۔ اس میں تھوڑا سا لکھ سکتا، کچھ دہلی یونیورسٹی کی چیزیں تھی، کچھ جے این سی چیزیں، کچھ جامعہ ملیہ کی چیزیں، علی گڑھ کے لیے ہمارے دوسرے اگر ہیں بتائیے۔ تو آپ کی طرف سے ہمیں اپنی چیزیں جو یاد آ رہی تھی بھر کر مجموعی طور پہ یہ تاثر قائم ہو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہیں گے۔ جو ایک بونڈ ہمارے بیچ قائم ہوا ہے اس کو قائم رکھیں گے۔ جدا ہو رہے ہیں آپ بڑے دنوں کے لیے۔ آپ نے جو ابھی پیش کی ایک نظم گاڑیوں پیش کریں گے کہ یہاں سے جائیں گے پھر تو آپ، مجھے لگ رہا تھا کہ مجبوراً اگر ایکسکیوز بھی جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے، کچھ ایسا بھی کہنے والے ہیں۔ تو ایسی بتنا ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور جو رشتہ قائم ہوا ہے جانے والوں کے ساتھ جو یہاں ہے وہ قائم رہے۔ اور آپ تو ہمارے ٹیچر نے بھی بچپن میں ہم سے کہا تھا کہ آپ تو ہماری دولت ہیں، جہاں بھی بھولیں گے پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے حصے کی دولت ہے۔ تو بڑھ کر آپ جہاں بھی جائیں گے بھولیں گے پڑھیں گے، وہ ہمارے حصے کی دولت ہے، شعبے کی دولت ہے، شعبے کا نام روشن ہوگا۔ ہماری نیک خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہر وقت آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ ہم آپ کو بیداری کریں گے کیونکہ گھر کھانے میں آپ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی نیک تمناؤں کے لیے۔ میں ڈاکٹر مسرت جہاں صاحبہ سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کے اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ آپ تمام کو مبارکباد۔ بہت اچھا پریزنٹیشن، بہت بہترین شاعریہ، نظمیں اور تمام بعض اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہیں اپنے موضوعات میں وہ سب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی جگہ نے پڑھا بہت اچھا تھا، لیکن ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اسی نہیں کہ انہوں نے پہلے بھی سنا ہے، یا پھر سیف کا میں نے سنا، اس کے علاوہ اور بھی جو ایک دو اسٹوڈنٹ تھے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ لکھتے رہیں، لیکن اب تھوڑی سی اس میں جدت پیدا کرے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جب کیرلا کے اسٹوڈنٹ ملیالم زبان میں کچھ کہتے ہیں، جو کشمیر کے بچے کہہ رہے تھے حیدرآباد سے کیوں، دکنی زبان میں بھی کچھ سنانا چاہیے، کچھ بھی کہنا چاہیے، چاہے وہ گیت ہو یا غزل ہو
या कुछ भी हो, जैसे कि इन्होंने जब सुनाया इंशाअल्लाह क्या नाम फरीदा ने, तो मैंने ये भी सोचा कि अगर वो दखनी ज़बान में कहती तो शायद इसका लुत्फ दोबारा हो जाता। तो मैं चाहूँगी कि जब अगली बार आप लोग प्रेजेंट करें, ऐसा कोई मौका आए, तो आप लोग दखनी ज़बान की भी नुमाइंदगी करें। इस बार मैंने महसूस किया कि अबरारुल रहमान और तौफीक अहमद ने पहली बार आके कुछ कहा। मैं उनकी सताइश करती हूँ, उनको मुबारकबाद देती हूँ और वो इसी तरह से कोशिश करें। बहुत अच्छी कोशिश की और तमाम स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूँगी। अब ऐसा मौका है लड़ाइया का, वो कश्मकश होती है क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन यहाँ से हमारे स्टूडेंट इतने, इनके यहाँ से जो स्टूडेंट जाने वाले हैं या रहने वाले हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जितने हमारे स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, वो एमए के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, इतने अच्छे हैं कि उन पे फख्र करने की ज़रूरत है। बहुत उम्मीद है कि वो रहेंगे। ऐसे तो जो कुछ वो करेंगे, यहाँ पे इतना अच्छे से एग्ज़ाम होता है, ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है उसका रिजल्ट कि जो कुछ भी जैसी उनकी सलाहियत होगी वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि वो आएँ, हमें भी खुशी होगी। लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि वो एमए के बाद, ख़ास तौर से जो एमए के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ से जाने के बाद या यहाँ हैं तो भी अपने आप को सिर्फ महदूद ना करें उर्दू तक, और ये सोचें कि हमें सिर्फ इसी शोबे में रहना है, इसी यूनिवर्सिटी में रहना है, या जहाँ के भी वो हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं या आंध्र प्रदेश के हैं, हमें यही रहना है। यहाँ तक उन्हें महदूद नहीं करना चाहिए। मास्टर्स की डिग्री भी कम नहीं होती है। अगर वो कोशिश करें थोड़ा और कंप्यूटर में, थोड़ी और अंग्रेजी ठीक करें, वो चाहे तो बैंक की फील्ड, बैंक का जॉब हासिल करें, वो चाहे रेलवे का जॉब हासिल करें, वो चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दें, उनके लिए बहुत से मौके हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर बायन में किसी का बिल्कुल जहन बना हुआ है कि वो टीचर ही बनेंगे यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो लिखें और पढ़ें, उनकी बेहतरीन यहाँ पे गुंजाइश भी है, और कहीं भी वो रहे वो लिखें, यकीनन आगे बढ़ेंगे। इन सब के साथ मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतनी तरक्की करें कि यूनिवर्सिटी ये कहे, शोबे ये कहे, शोबे वाले ये कहें कि वो स्टूडेंट इस जगह का है। यूनिवर्सिटी और शोबा आपके काम बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने नासिहाना कलमात से हम तलबा को पैगाम दे रही थी। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर शमसुल हुदा दरियाबादी साहब से गुजारिश करूँगा उर्दू तशरीफ लाएं और अपनी तफसीलात कह जाएँ। और आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, प्रोफेसर नसीरुद्दीन मलिक साहब, डॉक्टर वसर जहाँ, मौलाना अजहर साहब, सब स्कॉलर सर्विस तलबा शोबे को कायम हुए तकरीबन 10 साल हो गए, बल्कि 10 साल मुकम्मल हो गए। आपके इस प्रोग्राम के ऊपर तबसरा अपना मसला जाने दिया, आगे तफसील से डॉक्टर कलाम साहब भी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना, बल्कि अपने 10 साल की पूरा मेरे जहन में ये शोभा 10 साल में हुआ। सिर्फ शिवे को डी और पीएचडी हो तो शिवे शुरू उसके अलावा अलग अपनी जो होती है वो रवायतें जो मेरी तलबा की वो मैंने जहन में कभी सोचा था। तो पहला जो बैच था तकरीबन उसकी तलखियाँ इस आखिरी जो 10 साल की जो बैच की है तो इसमें मुझे नज़र आई 4 और 5 का बैच, और उसके लिए दरमियान के सारे बैच तकरीबन ठीक ही रहे, सब अच्छे रहे। डॉक्टर कलाम साहब जानते हैं कि पहला 4 और 5 का और फिर ये 14-15 का बैच तकरीबन बहुत सारी इसमें मुवासलत पाई जाती है। इब्तदा यहाँ फिर आगे का 10 साल में इंशाल्लाह फिर और नए टाइम के साथ और नए क्या कहते हैं सलाहियतों के साथ इंशाल्लाह वो बैच फिर आगे बढ़ करके वो शुरू होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ तो इसमें बहुत काफ़ी हद तक मुवासलत पाई जाती है। उसमें भी तकनीकी जहन के तलबा बहुत थे, उसमें 2 बहुत हमारे नाम थे, सूफी सफा और तो इस तरीके से उस वक्त ये
कुछ ना कुछ प्रोग्राम पेश होते थे, दरमियान में भी कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कुछ वक्फा आया कि फिर से दोबारा चंद सालों से ये अदबी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जब से लिहाजा डिस्कोर्स फोरम जब से आया है तब से इंशाअल्लाह और ज़्यादा इसकी अदबी सरगर्मियों की रफ्तार तेज़ होगी और इसमें आपकी पोशीदा सलाहियतें जो सामने आ रही हैं उभर के उसको उजागर होने का और करने का मौका मिलेगा। ये बैच जो है हमारा अभी गुजर रहा है, अभी आपके साथ सबके साथ मेरे ख्वाहिशात हैं। खुसूसन जब मैं नमाज पढ़ के आया तो अजीब हो जब ये हमारे फ़िरोज़ और उनकी टीम जो अपना बेहतरीन अलविदाई अंदाज जो पेश कर रहे थे, मैं अजीब को जज्बाती हो गया कि वाकई जो है देखिए दुनिया बिछड़ना और मिलना तो लगा ही रहता है, इसका नाम ही है बिछड़ना और मिलना। बिछड़ने में भी जो एक लज्जत है, मिलने में भी एक लज्जत है, जिसकी लज्जत मिला है उसकी अलग है। तो बिछड़ना मिलना ये लगा ही रहता है। मेरा आपने जितने अंदाज से आपने ये पेश किया वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है और आइंदा के लिए भी मशअल राह है जो इस तरीके से आप दिलदारगी के सबूत पेश कर रहे हैं और जो आपने शायर नज़में जो भी सुनाई जो भी कहीं डॉक्टर मसरत ने जिसे इशारा किया नकली का, तो पहले भी मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में बात आई थी शुगर है कि खुसूसन यहाँ पे रह करके वो कुछ तकनी में भी कुछ हमें कुछ ना कुछ उसके भी जो है पेशकश होनी चाहिए, उसका मुजाहरा होना चाहिए, उसकी तकनीका सामने आनी चाहिए, उसकी पूरी कोशिश करेंगे हमारे एतबार कलमा है या दूसरे भी जो नजरी को हासिल करें उसके भी कुछ ना कुछ जो है पेश होनी चाहिए। केरला की कलमा पेश कर रहे हैं, माशाल्लाह कश्मीर के कर रहे हैं, उन तमाम का बहरहाल ये है कि बहुत अच्छी बात करती है। बस मुझे फरीदा कलमा मुझे बहरहाल अच्छा लगा, बहुत पसंद है। फरीदा जो पढ़ने का अंदाज भी और उनका मौजूद भी, उनका कंटेंट भी और मुख्तसर जो उन्होंने पेश किया और तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इससे पहले भी उन्होंने के ऊपर कोई कौमान लिया था, उनके अंदर बड़ी अच्छी सलाहियत कोशिश है, आप इस पर बिल्कुल निशानियाँ लीजिए और लिखते रहिए आप। और इनके अंदर जो जमालियाती हिस्सा है हमारे सैफुल इस्लाम के बहुत माशाल्लाह अच्छी है और काफ़ी अच्छा जमालियाती मंजर निगारी और बहुत ही अच्छा जो है वो उसको भी आगे बढ़ाएँ। और शगुफ्ता की माँ हो चुकी है तो इसलिए माँ का जो जज्बात निगारी उन्होंने पेश की बड़ी उनका अंदाज बहुत अच्छा, तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। और इस तरीके से तमाम आपने पेश किए, मैं सबका की मुबारकबाद देता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इस तरीके के आप मुजाहरा करते रहें और हमारे नए जो MA की जो नया बैच है इनके अंदर भी जैसे अभी तैयार में माशाल्लाह अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, इतिहास के बाद हमारे रिजवान तो ये तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से तकनीकी सलाहियतों में भी आप नए बैच में भी आप इंशाअल्लाह तैयार हो, जैसे ये उम्र के सामने आए हमारे तौफीक कहते थे बनाते थे, बनाने के बाद बनाते लगे पेश हो रही है, हो रही है, तो उनको भी हौसला मिला। और सबसे बढ़ के अफराद हो कि अफराद में भी जो है जो कि बेटा रहता खामोशी रहते थे अक्सर क्लास में, लेकिन उनके अंदर भी हौसला मिला पढ़ने का। तो ये सब जारी रखिए, यहाँ से जाने के बाद भी आप कहीं भी रहें। मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है आप तमाम के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हम सामने डॉक्टर शमशेदा साहब से फैसला की बदमाश सुन रहे थे और मैं डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और अपने फैसला की बदमाश को सामने हमारे साबिक़ा लोगों के साथी उन्होंने शाहिद साहब और वो रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। उनको अलविदा के लिए इसका कई कार्यक्रम मनाया है और वो तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने अपने सीनियर साथियों को अलविदा कहने के लिए इस तकरीब की मेज़बानी की। तो मैं इस मौके पर आपका ज़्यादा वक्त बगैर उनके में बहुत सारी बातों का रहता कर दिया है और उनकी बड़ा जिम्मा होता है।
नज़र के साथ मेज़बान करवाने इस तकरीब के इंतजाम किए हैं वो अपने साथियों को अलविदा कहने के लिए अपने दिल के दरवाजे पर भी अपना सीना से ऊपर रख लिया और अपने जज्बात के साथ अपने साथ ही साथ मैं उन तबादलों को बात देता हूँ स्कॉलर्स को बात देता हूँ जो इस घड़ी इस लम्हे में अपने आप को फिराक की घड़ियों में महसूस कर रहे हैं, जुदाई की घड़ियों में महसूस कर रहे हैं और जिस तरह के जज्बात का उन्होंने इजहार किया है उससे वाकई उनके दिल के कर्म और एहसास जुदाई के रंग नवाल का इजहार हो रहा है और जिस सलीके के साथ उन्होंने फुर्सत की घड़ियों के दर्द को महसूस किया है उसको फनकाराना अंदाज में पेश किया है इसके लिए मैं धन्यवाद और इन सबसे हटकर इस सारे प्रोग्राम के दौरान जिन तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो या किसी और चीज़ की शक्ल में हो, उनके मुजाहरे से अंदाजा होता है कि शोबे की मेहनतें उन पर आएगा नहीं गई हैं और ये बर्बाद है। इसके लिए मैं जहाँ इन नौखेज़ तहकीकारों को बात कर देता हूँ और अपने शोबे के साथियों को बात कर देता हूँ कि उनकी मजलिसा में कार्यक्रम में आज इन तलबा को इस काबिल कर दिया है कि वो स्टेज पर ठहर कर पूरे इमाम भरोसे के साथ सामने को काम कर सकते हैं। इसके लिए दोनों फरीक़ैन मुबारकबाद तलबा अज़ीज़ किसी मर्द दाना से किसी साहिल ने पूछा कि इंसान के जिस्म में सबसे बेहतरीन अज़्ज़ कौन सा है तो उस मर्द दाना ने जवाब दिया कि ज़ुबान। और फिर पूछने वाले ने पूछा कि इंसान के जिस्म में सबसे बेहतरीन अज़्ज़ कौन सा है तो उस मर्द दाना ने जवाब दिया कि ज़ुबान। कि ज़ुबान ही है जो इंसान को समाज में और माशरे में अच्छा भी बनाती है और बुरा भी बनाती है। ये ज़ुबान ही है जो इंसान को किसी माशरे के लिए काबिल कबूल भी बनाती है और किसी माशरे की नफरतों और इंतकाम महमूदी को मुस्तैद बनाती है। ये ज़ुबान है। तो आज आप लोगों के अंदर जिस तरह का इत्तेहाद है, जिस तरह का मेल मिलाप है, जो दोस्ती और मोहब्बत है, उसकी बुनियाद ज़ुबान पर है। आप लोगों ने ज़ुबान से मोहब्बत, हमदर्दी और यगानगत का इजहार किया नए आने वालों के साथ। तो आज उन नए आने वालों ने अपने सीनियर साथियों के जाने के बाद में अपने मोहब्बत, अपने खुलूस का इजहार करते हुए इस तकलीफ का एहतमाम किया। तो ये ज़ुबान है जिसने आप सबको जोड़ कर रखा। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह ज़ुबान के इस्तेमाल में आज एक मामले के छोटे से माशरे के एक शोबे के अंदर हमारे तलबा को बाहर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रखते हैं, उसी तरह जब हमारे तलबा बहुत बड़े समाज में जाएँ, इस दुनिया में जाएँ, इस दुनिया के इंसानों के दरमियान में जाएँ, तो फिर ये जो तहज़ीब ज़ुबान की आपने यहाँ पर सीखी है, ये जो आदाब अपने ज़बान के इस्तेमाल के यहाँ सीखी है, ये जो सलीक़ा ज़बान के इस्तेमाल के आपने सीखा है, उसको इस्तेमाल में लाएँ और इस दुनिया को अपनी तहज़ीब से, अपनी सक़ाफ़त से, अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से, अपने सलूक से बताएं कि इंसानियत क्या है, मोहब्बत क्या है, आदमियत क्या है। फिर अपने अखलाक, अपनी ज़बान के ज़रिए से इस दुनिया को हम मोहब्बत का कहना बनाने में हम ज़रूर हो जाए। मैं इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के साथ आप लोगों को फिर एक मरतबा दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सलाती खिदमत के लिए मैं शोबे के जनाब डॉक्टर इस्लाम साहब को नहायत इस्लाम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और सलाती खिदमत से हम सामने निकल जाने के बाद भी दीवान से बात जमा और
खालिद सीसा उनका नाम खालिद सीसा और सबसे डॉक्टर सज्जन साहब, डॉक्टर डॉक्टर रबीला खातून साहब, इस्लाम अंदर साहब, कई बात की आप तमाम बात की मेरा ख्याल है कि हर साल तकरीबन बारगाह विदाई होते हैं, लेकिन इस साल का बारगाह की और उससे बढ़ की विदाई और किसी को इसीलिए यहाँ पर शिखर तमाम लोग मेरी बात से एक तरफ अगर खालिया है तो दूसरी तरफ खालिया है, और मुझको लगता है कि एक ही सिक्के के दो हैं। अगर मैं बहुत ही वस्ती तनाज़ुर में खुशी मैं कह सकता हूँ कि अज़ल दूसरे अज़ल की तरफ हम लोगों को हमारे पास था, किसी ने अलविदाइया किया कि नहीं था वहाँ पर, और मशहूर हूँ कि यहाँ पर किसी ने को इस्तक़बालिया नहीं किया। जो आखिरी आखिरी दुनिया का होगा यकीनन वो बेचारा महरूम होगा अलविदाइया से। तो आप लोग दोनों तरह के लोग हैं, इस्तक़बालिया से भी महरूम नहीं रहे और अलविदाइया से। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोगों को इस्तक़बालिया भी मिला और अलविदाइया भी। तो आप लोग तस्कीर के लोग हैं, उनको मिलेगा अलविदाइया, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस्तक़बालिया हासिल कर दिया है। जो सेकेंड ईयर के लोग हैं उन्होंने इस्तक़बालिया दिया था, अब उन्होंने अलविदाइया हासिल किया। तो आप लोग किसी भी तरह से महसूस नहीं हुए। तो पिछले दिनों जो पढ़ रहा था, ये पढ़ा रहा था भरत मुनि की किताब नातिशात या पूरे का, तो कैथारसिस के बारे में मैं बगौर पढ़ता था। वहाँ पर ज़ुमरे भरत मुनि की किताब में 9 जो की रस्म ओवरऑल कैथारसिस के बाद होते का भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन इस वक्त जैसा कि हमारे तमाम दोस्तों ने फरमाया कि एक मिक्स पैक है, तो आप लोग भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस किस्म की कैथारसिस हो रही है। मैं भी उसी से गुजरा हूँ, लेकिन लहर कहती कि अपने आप में कैथारसिस है। तो बात और कहना चाहूँगा वो ये कि मैं जिस इस्लाम पढ़ रहा था 5वीं क्लास में, तो वहाँ भी मुझे भी अलविदाइया मिला 5वीं क्लास में। फिर बिना पढ़ा इंटर कॉलेज गया, वहाँ पर इस्तक़बालिया मिला। फिर उसके बाद देखिए 9वीं क्लास में, उसी तरह से 11वीं क्लास में, उसी तरह से 11वीं में, उसी तरह से 12वीं में, फिर अलीगढ़ BA में, फिर सब BA मुकम्मल किए तो वहाँ पर फिर JU में आए। तो इस्तक़बालिया अलविदाइया एक तरह से नामुमकिन सिलसिले हैं जो हम तमाम की ज़िंदगी को तो हमें मुझको लगता है कि जैसे इस सिलसिले को हसीन जमीन समझ कर उस सिलसिले से होते हुए गुजरना चाहिए। और मुझको लगता है तरक्की भी इसी को कहते हैं। एक बात और कहीं मैंने महसूस की, वो ये कि पिछले दिनों एक मैंने निबंध या कह सकते हैं कि अफसाना पढ़ा था, या कह सकते हैं कि लेसन था। तो लेसन कुछ इस तरह का था कि टॉर्च बेरर, और उसमें एक वाक़या बयान हुआ था गुरु नानक। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आखिर में कहीं नाउमीद ना हो उससे, गुरु नानक एक गाँव जाते हैं और उस गाँव के लोग खातिर नहीं करते, उनके पैगामात नहीं सुनते, बल्कि जो कि
बदतमीजी पेश आते हैं तो गांव के बाहर गुरु नानक ने दुआ की कि इस गांव के लोग कुछ गलत नहीं यही रहे। उसके बाद दूसरे गांव जाते हैं और दूसरे गांव के लोग बड़ी खातिर दौलत करते हैं, उनकी बातें सुनते उनके पैगाम सुनते हैं। तो गुरु नानक जी ने उनको बताया पिछले गांव के लोगों ने इस तरह से बर्ताव किया थे आप लोग, मैंने उनके साथ उनके लिए बात। जब दूसरे गांव से निकल रहे थे तो गांव के लोगों ने कहा बाबा उस गांव के लोगों के लिए आपने इस तरह की दुआ की, जबकि उन लोगों ने बहुत सा सलूक नहीं किया, हम लोगों ने कोई बुरा सलूक नहीं किया, आपके पैगाम आपने सुना ऐसा सलूक किया, तो हम लोगों के लिए क्या दुआ करना है, कुछ अच्छी से दुआ कर दी, हम लोग नहीं कर कुछ करम है। उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश ही दुआ ये है इस गांव के लोग पूरी दुनिया में कहते हैं मैं इन्हें सेकेंड ईयर के लोगों से वही ख्वाहिश करती हूँ, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम ही दुश्मन को है, ऐसा नहीं। हम तमाम जितने लोग शोबे में हैं इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि एम ए सेकेंड ईयर के बेशतर लोग, मैं बेशतर इसलिए कह रहा हूँ कि मुमताज़ तरीके से बोलना चाहिए, बेशतर लोग इंशाल्लाह देखेंगे, इसलिए कि वो इसकी मुस्तैद हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप लोग जो है कि टेकिंग को काम कर लिए, आप लोग अपना काम करिए, हम तमाम व्यक्ति अपना काम करेंगे, तो हम लोग कहीं ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा वो ये कि शोबे की जहाँ की बात आती है, मैंने अलीगढ़ से लेके कॉलेज से लेके अलीगढ़ होते यहाँ पहुँचा, मुझे लगता है कि जो शोबे बर्बाद होते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जहाँ ने बहुत अच्छी बात कही, रजा साहब ने बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत अच्छी सी बात की, मुझे लगता है तमाम लोग बातों को नाम जरूर रखें। जब तक आपके अजहार मुस्तैद ना हो, जब तक आपके उलूम मुस्तैद ना हो, जब तक आपके मकासिद मुस्तैद ना हो, तब तक मुझको लगता है ज़बान मुस्तैद नहीं। डॉक्टर साहब की इजाज़त के साथ मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि ज़बान के ज़रिया आपके अजहार उलूम के इत्तेसाल, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन तीनों ज़हन, अजहान, उलूम और मकासिद की इत्तेहाद के साथ अगर रहेंगे तो ज़बान तस्कुर साथ में। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हीं मकासिद के साथ आगे बढ़ें और शोबे में जो इनके तीन बड़े तबके हैं, शाही साहब यहाँ पर मैनवी करें, नबी साहब किसी बैठे हुए हैं, बहुत अहम कह सकते हैं ये तबका है। अगर ये लोग जिनके साथ न दें तो मैं इतना महसूस कर रहा हूँ शोभा चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बैक बोन, मैं यूनिवर्सिटी की सतह भी कह रहा हूँ, ये बात शोबे की सतह भी कह रहा हूँ, ये लोग बैक बोन, अगर ये लोग साथ न दें तो शोभा चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरा देखिए गुरु जाहिर सी बात है असासा, हम तमाम में कहीं ध्यान ना हो, हम तमाम लोग जो कि मुतहिद होकर शोबे के राज मकासद को आगे न बढ़ाएं तो मुझको लगता है कि हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो कि हम लोग अपनी कोशिशों को हासिल करें। तीसरा ज़रूर इत्तेहाद आप लोगों ने, जो आप लोगों ने दिखाया है और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं कहूँ कि आप लोगों के इत्तेहाद से हम लोगों ने सीखा है तो पता नहीं होगा। तो हमारे तीन जो ग्रुप हैं, पीएटी, नॉन टीचिंग, टीचिंग और टॉक, ये तीनों ग्रुप जो है इंफरादी तौर से मुतहिद हैं, साथ ही साथ इज्तिमाई तौर से मुतहिद हैं। इन तीनों के इत्तेहाद से ही जो शोबा कायम होता है, शोबे की फारियत किसी इत्तेहाद में होता है। मैं आप तमाम से जो कि ख्वाहिश करूँगा कि इसके लिए दुआ भी करते रहें। एक बात और कहना चाहूँगा वो ये कि पिछले दिनों जो कुछ यहाँ पर लेक्चर्स हुई थी या जो ज़्यादा डिस्कस हो रहे थे, जो कुछ आप लोगों ने, मैं बताना चाहूँगा कि दीगर शोबों के लोग भी एग्री करें, दूसरी बात दूसरे शोबों तक बात करते हैं। लोगों ने तारीफ की है और मजे की बात ये है कि उस पर तारीफ भी करना शुरू कर दिया। हम तमाम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों में इसी तरह की सरगर्मियाँ होंगी, तो मुझको लगता है हम एक दूसरे से मुतअस्सिर होंगे। तो आप लोग तमाम के तमाम बात की मुस्तैद हैं और आखिर में जो थे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसमें ऐसे PhD कर चुके हैं या MPhil कर चुके हैं या जो फाइनल कर चुके हैं। फाइनल वालों के लिए तो कुछ कह सकता हूँ, MPhil वालों के लिए कुछ कह सकता हूँ, तमाम दोस्तों की इजाज़त से PhD वालों के लिए दुआ कर सकता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी कहीं न कहीं तरह से वैसे रोजगार दें। MPhil के लोग अपनी कोशिश जारी रखें, उनको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 10 चीज़ है।
सेकेंड ईयर जो लोग हैं वो भी नाउंगी देना हूँ, इसलिए कि हमारे पास वहाँ भी जो है सीट्स बनी है। तो मुझको लगता है कि जो सेकेंड ईयर के लोग हैं वो नाउंगी देना हूँ एमफिल में, और पीएचडी जो भी कर चुके हैं वहाँ भी हमने कोशिश की है कि 6 सीट्स हों, तो उससे ज़्यादा की कोशिश नहीं हो पाई, लेकिन वो सीट्स की मुझको लगता है तारीख से आपने देखे तो कम नहीं है। आप लोग 10 सीट्स के लिए एमफिल में, 6 सीट्स के लिए पीएचडी के लिए तैयार हैं। हम लोग आपके साथ हैं, बशर्ते कि आप लोग अपने साथ हैं। मैं आखिर में जो कि शेर सुनाना चाहूँगा, जो कि सुनाता हूँ, लेकिन हमें बात शेर है कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया तो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आगे जाते। लेकिन ये नहीं कि आप लोग शिकायत करें, बल्कि अपनी तरफ से आप कोशिश करें। आखिरी शेर कह सकते मक्ता शेर है कि उसकी तो वो जाने उसे पासे वफा था, उसकी तो वो जाने उसे पासे वफा था कि था, फराज अपनी तरफ से तो निभा के जाए। आखिरी शेर आप लोगों की बात तक में कि पूरे नवर शौक है मंजिल न कर, पूरे नवर शौक है मंजिल न कर, लैला भी हूँ नशीब हूँ तो महफिल न कर। और बस अब तक हमारे यहाँ फर्स्ट में था तो तराजी का सिलसिला तो मुस्तकम तरीके में था, लेकिन बहुत मुस्तकम तरीके का नहीं था। सर इसलिए भी मैं आपका आपने मशवरे दे करके और सारी चीज़ें आपने आवाज़ यहाँ पर सर दूसरे काम हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरे शाही साहब आजकल शुक्रिया हमारी तरफ से पुरस्कार रहा था, लेकिन शुक्रिया आपका तशरीफ लाए और दीगर तमाम स्कॉलर्स और एग्जाम है और सरकारी तकलीफ है, काम शुरू करने तशरीफ लाए। दूसरे आप लोगों का मशहूर